افغانستان سے پاکستان میں حملے ہوتے ہیں، امریکہ کا اعتراف، اسلام آباد پر دباؤ برقرار رکھنے کی پالیسی جاری رہے گی۔ امریکی نائب معاون وزیر خارجہ کا واشنگٹن میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، حکومتی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر خزانہ اسد عمر IMF سے مذاکرات پر اعتماد میں لیں گے۔ پینما کے بعد دوسرا بڑا ہنگامہ، ابراج گروپ نے کے الیکٹرک شیئرز چینی کمپنی کو بیچنے کے لیے چال چلی۔ شریف برادران کی مدد لینے کے لیے کاروباری شخصیت کو $2 کروڑ کی پیشکش کی۔ شہباز شریف فروخت کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔ امریکہ کا ذکر ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ کاروباری شخصیت نوید ملک نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں، وزیر خزانہ اسد عمر کا بڑا بیان۔ شہباز شریف کے وکیل نے الزامات مسترد کر دیے۔ ابراج گروپ سے کے الیکٹرک کے شیئرز کی فروخت کے لیے طویل مذاکرات ہوئے، ڈیل نہیں ہو سکی، خواجہ آصف کا رد عمل۔ سانحہ کارساز کی 11ویں برسی، کراچی میں یادگار شہداء پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور رہنماؤں کا نذرانہ عقیدت۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو آج حاضری دیں گے۔ PAF اکیڈمی اصغر خان رسال پور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، مہمان خصوصی صدر مملکت عارف علوی کو گارڈ آف آنر پیش۔ پانی زندگی کی علامت، محفوظ بنانا سب کی ذمہ داری۔ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے چیف جسٹس کا ایک اور احسن اقدام۔ 2 روزہ بین الاقوامی سمپوزیم کا کل سے آغاز، عالمی ماہرین ڈیموں کی تعمیر سمیت 5 اہم امور پر تجاویز پیش کریں گے۔ ٹائیگرز کی کراچی میں گدھا گاڑی ریلی، NA 247 سے امیدوار آفتاب صدیقی عوام سے ووٹ مانگنے نکل پڑے، SIUT سے ٹاور تک گشت۔ مقصد لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم لوکل عوام کے ساتھ ہیں۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے، ہر جتنے بھی طبقے ہیں سب برابر ہیں۔ ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ بلے پہ دھپا لگائیں اور ہم سب کا ساتھ دیں۔ خیبر ٹیچنگ اسپتال پشاور کی کمپیوٹر آپریٹر بھی کروڑ پتی نکلی، اکاؤنٹ میں 1,60,00,000 روپے موجود ہونے کا انکشاف۔ خاتون معطل، ڈائریکٹر فائنانس نے رقم کی منتقلی کو غلطی قرار دے دیا۔ فیصل آباد میں سرگودا روڈ پر آپریشن، اربوں روپے کی 14 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار، UC چیئرمین سے بھی 10 ایکڑ زمین کا قبضہ واپس لے لیا گیا۔ 2 درجن افراد امداد کا انتظار کرتے کرتے موت سے شکست کھا گئے۔ بیت المال سے رقوم کا حصول مشکل، مرنے کے بعد چیکس گھر پہنچ گئے، ہزاروں درخواست گزاروں کو کئی ماہ سے جواب کا انتظار۔ خستہ حال دیواریں، بجلی نہ پانی، فرنیچر بھی غائب، سندھ میں تعلیمی ایمرجنسی مذاق بن کر رہ گئی۔ کراچی کے سرجانی ٹاؤن کی سرکاری درسگاہ میں سہولتوں کا فقدان، اساتذہ اور طلباء کی دہائی۔ بایولوجی کا ٹیچر ہے، نہ فزکس کا ٹیچر ہے، نہ میتھس کا ٹیچر ہے، نہ کیمسٹری کا ہے۔ یہ انکل کوشیاں دو، بجلی دو، پانی دو۔ سیم انکل اسا کے پانی جو، بجلی جو۔ ٹیم کا سعودی کونسلر کے گھر 9 گھنٹے تک تلاشی آپریشن، قتل سے متعلق آڈیو ریکارڈنگ ملی ہے، ترک ذرائع کا دعویٰ، صدر ٹرمپ نے شواہد مانگ لیے۔
अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं मरियम ज़ीशान और मैं हूं उमर दराज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अहम खबर है, मुल्तान में निश्त रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। इस दौरान कब्रिस्तान की 3 कैनाल अराजी को वागुजार करवा लिया गया है। इस दौरान हमने देखा कि पुलिस एहलकारों और ताजिरों के दरमियान हाथापाई हुई है। पुलिस ने कार्रवाई की और एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज जानशेर खान। जानशेर खान, बताइएगा इस ऑपरेशन के बारे में, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? देखिए मरियम, अब तक 2 अफराद जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। यहाँ पर सुबह सवेरे ज़िलाई इंतज़ामिया भारी पुलिस की नफरी और हैवी मशीनरी के साथ पहुंची थी, क्योंकि कब्रिस्तान की अराजी है जिस पर चाय का होटल बनाया गया था और साथ ही 3 दुकानें वहां पर बनाई गई थी और कब्जा माफिया उन दुकानों से और होटल से बाज़ाब्ता किराया भी वसूल करता था। तो 2.5 से 3 करोड़ रुपए मालियत की ये अराजी थी, जहां पर ज़िला इंतज़ामिया ने इसको यहाँ से वागुजार कराया है। होटल जो है वो गिरा दिया गया है, दुकानें जो हैं वहाँ से मलिया मेट कर दी गई हैं और पूरा कब्रिस्तान का जो रकबा था उसको खाली कराया गया है। इसके साथ साथ निश्तर रोड के ऊपर जो साइन बोर्ड्स थे, काफ़ी सारे थड़े थे, वो भी मिसमार किए गए हैं, जिसके बाद ताजरों की जानिब से मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। यहाँ पर पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल हुई, उनकी हाथापाई भी हुई, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस की मजीद नफरी बुलवाई गई है और साथ ही 2 अफराद को जो है फौरी तौर पर हिरासत में लिया गया है। और MDA को जो हुकाम है ज़िला इंतज़ामिया के, उनका कहना है कि उनके खिलाफ FIR के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दे दी गई है। ऑपरेशन क्लीन अप जो है शहर के अंदर ये जारी है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता तेजी आती जा रही है। क्लीन अप जारी है और मज़ाहमत करने वालों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जानशेर खान, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब फैसलाबाद में सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया का राज बरकरार है। बासर अफराद महकमे अनहार की जमीन पर दुकानें बनाकर पैसे कमाने लगे। शहरी की दरख्वास्त पर वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर हुकाम से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल बासित। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब की मुहिम में आम शहरियों से कब्जा समेत तजावजात वाली अराजी वागुजार करवाने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन सरकार महकमा अनहार की सरकारी कॉलोनी में कब्जा माफिया के आगे घुटने टेक गई। बासर अफराद ने सरकारी अराजी पर दुकानें बनाकर किराए पर दे रखी हैं। शहरी की दरख्वास्त पर वज़ीर आला पंजाब ने महकमे से रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी कॉलोनियों में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, जो नीम सरकारी हैं उनके खिलाफ तो तजावजात के खिलाफ तो ये ऑपरेशन कर रहे हैं, सरकारी कॉलोनियों में कौन करेगा? ज़राए के मुताबिक महकमा अनहार की जगह पर कब्जा करवाने में इदारे के मुलाजमीन भी मुलविस हैं। इदारे के निगहबान चीफ इंजीनियर महकमा अनहार राशिद मंसूर कहते हैं कि वाकया नोटिस में आया है, जल्द काबजीन से अराजी वापस ले लेंगे। एक्शन साहब को निकाल किया और इंशाल्लाह उनके जिम्मे लगाते हैं। जो गवर्नमेंट की कैंपेन भी है, अगर कोई ऐसा मिसयूज हो रही गवर्नमेंट अकोमोडेशन फॉर कमर्शियल पर्पस तो नहीं होनी चाहिए, उसको फौरी तौर पर टेकअप करके और उसको अंडर द रूल्स जो भी एक्शन है वो लेते हैं। आदादो शुमार के मुताबिक मुलाजमीन कई सालों से जगह किराया पर देकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि हुकाम कहते हैं वाकया के खिलाफ मुलाजमीन से इंक्वायरी के बाद महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अब्दुल बासित है। मुल्तान में निश्त रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। इस दौरान कब्रिस्तान की 3 कैनाल अराजी को वागुजार करवा लिया गया है। इस दौरान हमने देखा कि पुलिस एहलकारों और ताजिरों के दरमियान हाथापाई हुई है। पुलिस ने कार्रवाई की और एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज जानशेर खान। जानशेर खान, बताइएगा इस ऑपरेशन के बारे में, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? देखिए मरियम, अब तक 2 अफराद जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। यहाँ पर सुबह सवेरे ज़िलाई इंतज़ामिया भारी पुलिस की नफरी और हैवी मशीनरी के साथ पहुंची थी, क्योंकि कब्रिस्तान की अराजी है जिस पर चाय का होटल बनाया गया था और साथ ही 3 दुकानें वहां पर बनाई गई थी और कब्जा माफिया उन दुकानों से और होटल से बाज़ाब्ता किराया भी वसूल करता था। तो 2.5 से 3 करोड़ रुपए मालियत की ये अराजी थी, जहां पर ज़िला इंतज़ामिया ने इसको यहाँ से वागुजार कराया है। होटल जो है वो गिरा दिया गया है, दुकानें जो हैं वहाँ से मलिया मेट कर दी गई हैं और पूरा कब्रिस्तान का जो रकबा था उसको खाली कराया गया है। इसके साथ साथ निश्तर रोड के ऊपर जो साइन बोर्ड्स थे, काफ़ी सारे थड़े थे, वो भी मिसमार किए गए हैं, जिसके बाद ताजरों की जानिब से मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। यहाँ पर पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल हुई, उनकी हाथापाई भी हुई, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस की मजीद नफरी बुलवाई गई है और साथ ही 2 अफराद को जो है फौरी तौर पर हिरासत में लिया गया है। और MDA को जो हुकाम है ज़िला इंतज़ामिया के, उनका कहना है कि उनके खिलाफ FIR के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दे दी गई है। ऑपरेशन क्लीन अप जो है शहर के अंदर ये जारी है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता तेजी आती जा रही है। क्लीन अप जारी है और मज़ाहमत करने वालों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जानशेर खान, आपने अपडेट किया।
दूसरी जानिब फैसलाबाद में सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया का राज बरकरार है। बासर अफराद महकमे अनहार की जमीन पर दुकानें बनाकर पैसे कमाने लगे। शहरी की दरखास्त पर वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर हुकाम से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल बासित। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब की मुहिम में आम शहरियों से कब्जा समेत तजावजात वाली अराजी वागुजार करवाने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन सरकार महकमा अनहार की सरकारी कॉलोनी में कब्जा माफिया के आगे घुटने टेक गई। बासर अफराद ने सरकारी अराजी पर दुकानें बनाकर किराए पर दे रखी हैं। शहरी की दरख्वास्त पर वज़ीर आला पंजाब ने महकमे से रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी कॉलोनियों में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, जो नीम सरकारी हैं उनके खिलाफ तो तजावजात के खिलाफ तो ये ऑपरेशन कर रहे हैं। सरकारी कॉलोनियों में कौन करेगा? ज़राए के मुताबिक महकमा अनहार की जगह पर कब्जा करवाने में इदारे के मुलाजमीन भी मुलविस हैं। इदारे के निगहबान चीफ इंजीनियर महकमा अनहार राशिद मंसूर कहते हैं कि वाकया नोटिस में आया है, जल्द काबजीन से अराजी वापस ले लेंगे। एक्शन साहब को मैं कॉल किया और इंशाल्लाह उनके जिम्मे लगाते हैं। जो गवर्नमेंट की कैंपेन भी है, अगर कोई ऐसा मिसयूज हो रही गवर्नमेंट अकोमोडेशन फॉर कमर्शियल पर्पस तो नहीं होनी चाहिए, उसको फौरी तौर पर टेकअप करके और उसको अंडर द रूल्स जो भी एक्शन है वो लेते हैं। आदादो शुमार के मुताबिक मुलाजमीन कई सालों से जगह किराया पर देकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि हुकाम कहते हैं वाकया के खिलाफ मुलाजमीन से इंक्वायरी के बाद महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अब्दुल बासित।